चलो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके साथ ही वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है वो। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और आपने इसके लिए रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। मैं पहले रे डायग्राम आपकी बना देती हूँ। ठीक, आप भी अपनी कॉपी और पेन लेके रे डायग्राम बना लीजिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आपका किस किस का सिलेबस रहता है बेटा? केमिस्ट्री में। बाकी सबका हो गया? यस मैम। मैथ्स का हो गया? नो मैम, मैथ्स का थोड़ा सा बचा केमिस्ट्री का कितना है? मैम, एक चैप्टर। हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम है ना आप लोग। ओके, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ नॉट एंड टू एफ नॉट, राइट? This one is your object, which is represented by AB. Okay. Now, always we'll take the two types of lines. One line is your what? One ray. You can say one ray which is parallel to principal axis, and another ray which passes through the optical center C1. Now, when a ray is parallel to principal axis, after refraction, what happens? Refraction के बाद वो कहाँ से pass? It passes through F naught. It will pass through the focus, that is your F naught. It will pass through F naught. इसको थोड़ा हम extend करेंगे because ये I lens पे fall करेगी. And another ray which passes through the center of curvature, okay, remains undeviated but meets at this point. And this is the image of your objective lens which is represented by A dash B dash. ठीक है, ये मैंने पिछली बार भी समझाया था that and the image is formed where beyond 2f naught. This one is your 2f naught. When the object is between f naught and 2f naught, image is formed beyond 2f naught and the image is your real and invert. So if this is your objective lens, its object is AB and its image is A dash B dash, right? Now we'll take a eye lens, right? अब यहाँ पे हम एक और लेंस बनाएंगे. Here we will make a lens and now the image is kept between the optical center and the focus. So the lens should be made here. ठीक है, लेंस को आप यहाँ बनाएंगे. Right? This is your eye lens. ये eye lens है and this one is your objective lens. Again, it is having the optical center C2. Now again, we'll take the two rays. One ray is passing through your parallel to principal axis. After refraction, passes through the focus and passes through the focus of the eye lens. Fe represents your eye lens, focus of eye lens, and this is your Fe. See here. Now A dash B dash act as the object. ठीक है, आई लेंस में जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा that is your A dash B dash, right? For eye lens, the object is A dash B dash and object is lying between what? It is lying between your focus
of the eye lens and the center of curvature. फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है. लास्ट टाइम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जब भी आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होगा, द इमेज इज फॉर्म्ड व्हाट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑन द सेम साइड. तो जैसा इमेज होगा इस साइड, ऐसा इमेज यहाँ पे बनेगा. नाउ वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड, प्रोड्यूस दिस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इसको प्रोड्यूस करिए बैकवर्ड में. नाउ टेक अनदर रे. ठीक है, हम दो सेट ले रहे रेज का. वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अनदर रे which passes through the optical center. It remains undeviated, but when you produce it back, and somewhere here these two rays will join, and the final image is your what? A double dash, B double dash. Okay, the final image, you can say eye lens से हमारा एक final image आएगा. You will get a final image जो कि होगा what? A double dash, B double dash. So final image is your A double dash, B double dash. For see now, for objective lens, AB is object and A dash B dash is image. And for eye lens, A dash B dash is object, which is lying between the focus and the optical center, and image is your A double dash, B double dash, which is your virtual and the erect image. This is the ray diagram of compound microscope, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है. Now next what we will do, we will draw a line B double dash. This is B double dash, B double dash Q. यहाँ पे Q ले लीजिए, which is equal and parallel to AB. ठीक है, we'll write here, draw B double dash Q equal and parallel to AB. Okay, draw B double dash Q equal and parallel to AB. Now what we will do, अब आपने दो एंगल्स लेने हैं. वन एंगल इज दिस, join it at C2. C2 पे ज्वाइन करना है. थोड़ा सा ऐसे प्रॉपरली नहीं ज्वाइन हुआ, ये ऐसे थोड़ा लाइन को C2 पे ज्वाइन करना है. एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ. ये देखिए, ये C2 पे मैंने ज्वाइन कर लिया. ये हमारा B डैश था, राइट, एंड ये B डबल डैश Q हो गया, और ये लेंस पूरा कंप्लीट हो गया. ठीक, एंड दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड एज एंगल अल्फा. इस एंगल को हम एंगल अल्फा कहेंगे. और ग्रीन पेंसिल ले लेती हूं मैं दूसरा, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड योर, इतना एंगल को हम बीटा. ठीक है, अल्फा एंगल एंड बीटा. अल्फा एंगल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट लिया जाता है, और बीटा एंगल ऑलमोस्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज लिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन. एक तो मैग्निफिकेशन होता है, you know that magnification is your what, V by U, or size of the image to the size of the object. Magnify कितनी image हुई. But in case of microscope and telescope, we talk about the magnifying power. ठीक है, इनका कितना power of the lens जैसे बोलते हैं, ऐसे इनका क्या magnifying power होगा. So magnifying power is your, you will first of all you will make the ray diagram of that particular optical instrument. Then in every optical instrument you have to calculate its magnifying power. Now how the magnifying power is, magnifying itself means your what, कितना वो आपका increase हो रहा है, magnify हो रही है आपका object का image. तो mathematically it is written as m, which is equal to angle subtended by image, by image
to the angle subtended by image to angle subtended by object. Angle subtended by image at eye lens, angle subtended by object. ठीक है, तो इमेज के साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो लेते हैं, इमेज को हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे हर जगह, ये बीटा, ठीक है, ये एंगल है बीटा, दैट इज tan बीटा। एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज योर tan अल्फा। ओके, अब हमें यहाँ पे tan बीटा एंड tan अल्फा को कैलकुलेट करना है, ठीक है, निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे ये इरेज करती हूँ। हर किसी जितने भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करोगे, हमें हर किसी का tan बीटा एंड tan अल्फा को कैलकुलेट करना है, राइट। अब देखिए पहले tan बीटा लेते हैं, लेट अस टेक ए tan बीटा। tan बीटा इज दिस वन, ठीक है, एंड इमेज का ले लीजिए, बीटा एंगल ये रहा, पर tan इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस बिकम्स योर परपेंडिकुलर A डबल डैश B डबल डैश, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आप देखिए A डबल डैश B डबल डैश एंड C2 इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, A डबल डैश B डबल डैश एंड C2 इज राइट एंगल ट्राइंगल। Now in this right angle triangle, tan beta will be equal to perpendicular upon base. Perpendicular of this right angle triangle is A double dash B double dash. And what will be its base? Base क्या होगा? What should I write here? B double dash C2. हाँ, B double dash C2. Okay, B double dash C2. Now let me write down about now tan alpha. Okay, what should I write here? Tan alpha, ये alpha है. This is your alpha angle जो मैं कर रही हूँ। Now what is the right angle triangle? Q B double dash C2, ठीक है। So what should I write tan alpha के लिए क्या लिखूं? Perpendicular is your what? B double dash Q. B double dash Q. हाँ, upon B double dash C2, right, right। अब हमने डिवाइड करना मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो tan बीटा आपका A डबल डैश B डबल डैश अपॉन B डबल डैश C2 हो गया, डिवाइडेड बाय tan अल्फा है। तो tan अल्फा को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, फिर हम डिवाइडेड बाय ये सारा लिखेंगे, फिर रिवर्स करके फाइनली ये क्या आएगा, B डबल डैश C2 अपॉन B डबल डैश Q। ओके, B डबल डैश C2 और B डबल डैश C2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। And moreover, you know that B double dash Q is equal to AB actually. B double dash Q हमने लिया था equal and parallel to what? AB इस लाइन में। तो replace B double dash Q by AB. So you can write it as A double dash B double dash upon AB, right? अब इसको थोड़ा सा हमें rearrange कैसे करना है? Multiply and divide by. In the next step, you can write multiply and divide by what? A dash B dash. A dash B dash से आप multiply और divide करो. What should you get? M is equal to A double dash B double dash upon AB into A dash B dash upon A dash B dash. Okay? अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रीअरेंज करती हूँ, बस ये मतलब निकलने, अरे नीट भेजती हूँ। ओके, मैं देखती हूँ मोस्टली ये 29-30 तो बिना उसके प्रॉब्लम क्रिएट करके आ जाते हैं, बाकी को हमें मतलब हर बार ऐसे खींच के लाना पड़ता है। अब तो सेशन खत्म हो गया, बोला भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, आप इसको ऐसे करेंगे हम अरेंज, ठीक है। देखिए मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली योर व्हाट, दैट इज योर साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
देखो ये इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है, ये इमेज है, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए डबल डैश बी डबल डैश का ऑब्जेक्ट कौन सा, अगर ये इमेज है ए डैश बी डैश। तो मैं ए डैश बी डैश एक यहाँ पे लिख लूंगी, हमने ए डैश बी डैश ये हमने एक बना दिया जी, राइट, ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज हो गई और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अनदर वन, I will write down the left is your what, a dash b dash upon ab, right? AB is your what, object, and it what is its image, AB का image कौन सा है, a dash, ए डैश बी डैश। तो हमारा ये भी एक आ गया सेट, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का सेट आ गया और ये आई लेंस का सेट आ गया, ये इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है। दिस इज इमेज ऑफ आई लेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ आई लेंस, ठीक है। नाउ हाउ वी कैन नाउ राइट इट एज, ये जैसे मैं पहले लिख रही हूं, आई एम राइटिंग दिस वन, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो मैं लिखूंगी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस MO इनटू, ये आपका आई लेंस का है, दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ओके। फिर और इसको हमने लिखना है अब ऑब्जेक्टिव लेंस का अलग लिखना है, आई पीस का हमें सेपरेटली लिखना है। नाउ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज योर व्हाट, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो आप जनरली यूज करते हो, दैट इज योर व्हाट, देखिए इस ऑब्जेक्ट का वो V/U के टर्म्स की बात कर रही हूं मैं, और अब देखिए ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये V लिख रही हूँ, ये U लिख रही हूँ, ओके, पहले मैं V/U लिख लेती हूँ। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेस देखने हैं, राइट, मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऑप्टिकल सेंटर टू इट्स इमेज, इमेज हमारी यहां बन रही है, राइट, तो यहां से यहां तक जब जाएंगे तो इट इज अलोंग द इंसिडेंट लाइट, सो यू विल राइट प्लस, राइट। नाउ ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑब्जेक्ट की ओर जाइए, गो टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, C1 से B, व्हाट इज इट, डायरेक्शन देखिए C1 से B क्या है, ऑपोजिट, अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट, C1 से आपने मूव करना है, व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम C1 टू B it is opposite to incident light, so you will write it as minus U. So magnification of objective lenses plus V upon minus U. Next is your magnification of eyepiece. अब magnification of in eyepiece you will take what, simple microscope का, because that act as a eyepiece, जो हमने simple microscope last time पढ़ा वो हम आंख के पास रखते हैं, we keep it near the eye, तो वो eyepiece का करता है act, तो उसकी relation we have already got. Although that is not in your syllabus, वो अलग से आपको सिलेबस में लर्न नहीं करना है, बट यहाँ उसकी रिलेशन यूज हो रही है, दैट इज व्हाई वी डिड दैट वन। तो अब मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये वैल्यूज पुट करिए, सो इट बिकम्स प्लस V अपॉन माइनस U, ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, 1 प्लस D/F। ये आपका टोटल मैग्नीफाइंग पावर किसका आ गया, दिस कम्स टू योर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये रिलेशन। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इन अदर वर्ड्स मैंने पहले भी बताया, या पूछेंगे शॉर्ट फोकल लेंथ है एक का larger focal length है, which instrument is this, name that instrument, make its ray diagram, और word आएगा write the expression of, ठीक है, कई सालों से बीच में 2-3 साल कंटिन्यूअसली ये आया कि write the expression of, जब वर्ड आपका write the expression आएगा तो फिर भी स्टूडेंट्स पूरी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, राइट के लिए आपको डेरिवेशन सॉल्व नहीं करनी है, यू विल ओनली राइट दिस रिलेशन, और अगर आएगा ऑब्टेन वर्ड, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, तब आपको डेराइव करना है, या अगर आएगा डेराइव द रिलेशन, तो डेराइव से तो आप समझ जाओगे, ऑब्टेन से भी डेरिवेशन ही करनी है, बट व्हेन जब क्वेश्चन में आपका राइट वर्ड लिखा होगा तो आपको ये डेरिवेशन पूरी सॉल्व नहीं करनी है, यू विल ओनली राइट दिस इक्वेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, that is the expression of the magnifying power, ठीक है।
फिर इसका एक कुछ एक्सटेंडेड वो आता है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स देख के नहीं जाते हैं, वो भी आप समझ लीजिए यहाँ पे। फिर आप एक सेकेंड, अब इसमें केस लिया जाता है जिसमें लेंथ का कंसेप्ट देते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो, और अब आप खुद ट्राई करिए इसको, प्रैक्टिस करो, तभी इसमें आपका वो कॉन्फिडेंस बैठेगा। क्योंकि जब हम क्लास में होते थे तो मैं काफी बार ड्रिलिंग करवा देती थी स्टूडेंट्स को इस रे डायग्राम की, फिर तो स्टूडेंट्स आराम से बना लेते थे। एक हर कोई स्टूडेंट लोअर लेवल का भी बना लेता था, ठीक है। अब एक स्पेशल केस है, इफ द ऑब्जेक्ट इज नियर द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज नियर टू फोकल लेंथ FO, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल अभी तो मैंने बीच में बनाया, बीच में ही है, इट इज बिटवीन 2F0 एंड F0, बट द ऑब्जेक्ट इज जस्ट नियर दिस, नियर द F के पास है, ठीक है। F के ऊपर नहीं है, F के इधर भी नहीं है, बट इट इज नियर टू F। इफ द ऑब्जेक्ट इज नियर टू ऑब्जेक्टिव लेंस, नियर टू F0 ऑफ व्हाट, ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, U इज टेकन एज ऑफ द ऑर्डर ऑफ F0। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को F0 के ऑर्डर में लेंगे। एट इन दैट सिचुएशन image is formed, in that situation image is formed near eye lens। उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो इमेज बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, बट इट विल बी लिटिल बिट क्लोज टू लेंस, लेंस के पास बनेगी। ये जो इमेज बनेगी इट वुड बी बिटवीन फोकल लेंथ एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन और लेंस के पास बनेगी। तो उस सिचुएशन में जो इसकी इमेज पोजीशन लेते हैं, C1 से यहां तक के का इमेज पोजीशन कहेंगे, जिसको हमने +V से डिनोट किया है। तो ये U डिनोट किया, U तो F0 हो गया, and the image is formed, in that case the image is formed near the eye lens। in that situation V is taken as your what, दो माइक्रोस्कोप के बीच का डिस्टेंस को L बोलते हैं, लेंथ ऑफ दैट ट्यूब। उस ट्यूब का लेंथ है जहां पे आपने, अगर वो माइक्रोस्कोप आप कह रहे हो हमने देखा हुआ है लैब्स में, तो जहां से आप देखते हो दैट इज आईपीस, जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हो वहां पे आपका वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। दोनों लेंसेज के बीच में एक ट्यूब होती है जिसमें वो आपका मूव कर रहा होता है, दैट इज टोटल L। तो इफ दिस इमेज इज फॉर्म नियर द लेंस तो उसको हम क्या लेंगे, L लेंगे। तो इमेज इज फॉर्म्ड नियर L, सो इट कैन बी रिटन एज, कभी कभी ऐसे आता है क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर इन टर्म्स ऑफ L। तो स्टूडेंट्स यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये L कहाँ से आ गया। तो L इज नथिंग, दैट इज द लेंथ ऑफ दैट ट्यूब जहां पे ये दोनों आपके होंगे। तो उस केस में ये रिलेशन हाउ इट कैन, दिस कैन बी रिटन, +V की जगह आप लिखेंगे L और U की जगह लिखेंगे -F0, ओके, एंड 1 + D/F, ठीक है। ये आपका रिलेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ हो गया, ठीक है। ये सिर्फ +V को हमने, ये स्पेशल केस है इसका। तो स्पेशल केस इज योर व्हाट, +V जब आपका L होगा, एंड क्योंकि ये यहां पे बनेगा तो इमेज आपकी यहां बन रही है, तो आपका इसके बीच का डिस्टेंस जो है, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, L लिया जाएगा, L -F0 1 + D/FE। तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस मैम। अच्छा, एक सेकेंड। मैंने सोचा मैसेजेस आ रहे हैं, पता नहीं आप लोग तो नहीं। हाँ, टेलीस्कोप आपको पता है दैट इज यूज्ड फॉर सीइंग द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
टेली मीन्स फार ऑफ, टेली माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्कोप मीन्स देखना, ठीक है। टेली मीन्स फार एंड स्कोप मीन्स योर व्हाट, टू सी, राइट। सो टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर सीइंग योर फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपके हेवनली बॉडीज हो गए, स्काई में स्टार देखना है, मून देखना है, उसके लिए आप टेलीस्कोप यूज करते हो। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। नंबर वन इज योर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को ही कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। आजकल क्वेश्चन ना रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के टर्म्स में पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसमें लेंस यूज होगा दैट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अनदर वन इज योर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसमें हम मिरर यूज करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, बिकॉज वी आर यूजिंग द मिरर, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। In astronomical telescope you have the two cases, दो cases हैं इसके, right? One case is your called normal adjustment, ये पार्ट इसका normal adjustment। तो वहां क्वेश्चन आता है कि आप मतलब रे डायग्राम बनाइए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का व्हेन इट इज एट नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में क्या होता है, in normal adjustment, final image is formed at infinity. Final image is formed at infinity. Okay? और दूसरा आपका होता है least distance of distinct vision adjustment. Least, when image यहाँ पे लिख लेती हूँ सीधे, when final image is formed at least distance of distinct vision, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज टू केसेस आर रिगार्डिंग योर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फिर एक हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है जिसमें हम लोग मिरर यूज करते हैं, राइट। फर्स्ट विल टेक नॉर्मल एडजस्टमेंट। इन दैट केस द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट व्हाट, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो अब मैं रे डायग्राम बना लेती हूँ और आप ध्यान से देखिए कैसे बनाना है आपने रे डायग्राम। Okay, A part we are taking first of all astronomical telescope, and A part image at infinity, जिसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट से भी कॉल करते हैं। आप लोगों ने मे बी ट्यूशंस में भी पढ़ा हो, बट स्टिल देख लीजिए, फिर भी रे डायग्राम्स में आप गलती करते हैं। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ लार्जर होता है। फोकल, क्योंकि दूर से देखना है हमें, दूर की चीज देखनी है, सो फोकल लेंथ इज लार्जर। मैंने बताया कि आपको इस टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हुज ऑब्जेक्टिव लेंस हैज द लार्जर फोकल लेंथ, एंड आई पीस का उतना ही होता है बट कंपैरेटिवली इससे थोड़ा छोटा होता है। आई पीस का स्मॉल होता है, इतना स्मॉल भी नहीं होता कि आप बोलोगे बहुत, इसके कंपैरिजन में हल्का सा 1-2 सेंटीमीटर वो कम होता है। आई पीस का स्मॉल होता है, स्मॉल फोकल लेंथ। तो इस टर्म्स में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है नेम करके। नाउ दिस इज, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर C1,
ये प्रिंसिपल एक्सेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द इमेज, उसके बाद देन विल मेक द आईपीस। देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं आपको बनाना है, बिकॉज ये आपका टेलीस्कोप है, आप दूर से चीज देख रहे हो। जब भी दूर से चीज देख रहे हैं तो मैं यहां पे लिख लेती हूँ, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। बताइए जब ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, वेयर द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ पे बनेगी, ठीक है। तो उसका मतलब हम बनाते हैं इसको ये ऐसे, मे बी मेरे भी, हाँ ये रिफ्रैक्शन थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ा बेंड दिखाएंगे यहाँ रे को ना, फिर यहाँ जैसे बाहर आएगी थोड़ा बेंडिंग दिखाओगे। हम्म, एक ऑप्टिकल सेंटर से दिखाओगे आप जो कि अनडिविएटेड रहेगी। थोड़ा पैरेलल रेज बनानी है, यू विल टेक पैरेलल रेज, राइट। तो यहाँ तो चलो डिविएट हो गए ना पाथ से, ये तीन पैरेलल लेनी है आपको। जब तक लेंस के अंदर है तब तक ऑल द थ्री रेज शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ये ऑब्जेक्ट आपका दूर है एट इंफिनिटी, ठीक है। एंड इमेज इज फॉर्म, ये अनडिविएटेड रहेगा बट इट विल मीट, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट मेरा वो हो गया, और उसका मतलब इसको थोड़ा मैं डिविएट यहाँ से कर लेती हूँ। ये यहाँ पे मीट हो रहे हैं। मैं वैसे किसी भी पिक की हेल्प ले सकती थी मैंने, बट सोचा आई विल बेक इट, आप यू कैन यूज योर स्केल एंड ऑल दैट, तो उससे बड़ा प्रॉपर बनने का आपका। मैं यहाँ तक एंटर कर गया तो मैं थोड़ा बेंड ज्यादा कर देती हूँ रे को, ठीक है। आप यहाँ से बेंडिंग दे, बिकॉज इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो आप बेंडिंग दिखा सकते हो। ये इधर ये रेज है, ठीक है, एरोज मस्ट है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सिचुएशन है, राइट। आफ्टर, मैं ये प्रिंसिपल एक्सेस बना लेती हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सेस है एंड दिस इज द इमेज फॉर्म्ड हियर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश बी डैश से। एंड मोर ओवर दिस इज योर फोकस, ये बिकॉज दिस इज, एक तो दिस वन इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, मेक इट क्लियर, द रेज आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी से आ रही है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर मीटिंग एट द फोकस, बिकॉज इमेज इसका कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा। नाउ टेक अनदर लेंस, एक और लेंस लीजिए, आई लेंस, right, its optical center is C2. Now see what is happening, not the A dash B dash. Now for eye lens what is happening, eye lens के लिए क्या हो रहा है, for eye lens A dash B dash act as the object, ये आपका ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, बट इट इज लाइंग बिटवीन द, ध्यान से देखिए इस यहाँ पे, ये आपका कहाँ पे है, ये फोकल लेंथ आपका ऑब्जेक्टिव का यहीं पे कोइंसाइड कर रहा है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये पॉइंट आईपीस का फोकल लेंथ भी है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन नाउ, फॉर इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आई लेंस एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एंड इट इज एट योर व्हाट, फोकस ऑफ द आई लेंस के फोकस पे है। Now, when the object is at focus, image is formed at what? बताइए, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है
तो इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी? जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज आपकी कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे, ठीक है। सो इन दिस केस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ओके, in this case image will be formed at what? Image will be formed at infinity. ओके, इसका उल्टा ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, तो इंफिनिटी ये है, पैरेलल रेज आ रही थी, और इमेज कहां बन गया? फोकस पे, बिकॉज इंफिनिटी पे आ रही है, फोकस पे बन गया, ये एफओ है। आई लेंस में ऑब्जेक्ट कहां पे है? आई लेंस के फोकस पे है। अब इमेज कहां बनेगी? अगर आई लेंस के फोकस पे है तो इमेज आपकी इंफिनिटी पे बनेगी। तो हम दूसरा सेट लेंगे रेज का, वही सेम सिचुएशन, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इसके फोकस से पास करेगी, ठीक है। एंड एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर रिमेन्स अनडिविएटेड। इनको प्रोड्यूस बैक करोगे, दोनों रेज को प्रोड्यूस बैक करोगे, और यहां आपकी इमेज इसकी बनेगी, और इमेज कहां बन रही है इसकी? इंफिनिटी। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज बनती है, फाइनल इमेज का मतलब क्या है कि देखो दो इमेजेस बनती है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज बनती है, फिर वो उसका ऑब्जेक्ट का काम करता है, फिर आई लेंस से जो भी इमेज बनती है वो फाइनल बनती है। सो दिस इज योर नॉर्मल, हम अभी एडजस्ट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट लेंस को, this is that is why it is called normal adjustment. So at the normal adjustment what is happening, you are focusing the far off object, कोई भी heavenly body, मून वगैरह को फोकस कर रहे हो, स्टार को फोकस कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग, जब आप एडजस्ट कर रहे हो यू विल गेट द इमेज एट फोकस of this objective lens, and moreover the same it will act as the object of the eye lens, ये इस eye lens का object का काम करेगा। अब फिर हम देखते हैं आई लेंस में ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? उसके फोकस पे है। जब ये उसके फोकस पे है तो इमेज हमारा क्या बनेगा? इमेज हमारा इंफिनिटी पे बनेगा। तो वही दो रेज लेंगे, जैसे यहाँ पे एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, एक ऑप्टिकल सेंटर, फिर इनको पीछे फॉरवर्ड करो, कहीं पे भी ज्वाइन मत करो। जब आप कहीं पे भी ज्वाइन नहीं इसको करोगे तो हम बोलेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस देखिए, ऑप्टिकल सेंटर ये है और यहां तक आपका एफओ है ना, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आपका? एफ, ठीक है। इसके ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, दूसरी लाइन में आप क्या दूसरे कलर से बनाती हूं, यहां तक का डिस्टेंस, ये जैसे एक एरो बना दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर तक, इधर के ये ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक आई है, आईपीस से देखिए तो ये एफ का काम करेगा, और ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस देखिए, ये इस लेंस के लिए एफओ का काम कर रहा है, और इस लेंस के लिए ये वाला डिस्टेंस एफ का काम कर रहा है। तो दो लेंसेज के बीच के डिस्टेंस को हम एल बोलते हैं, ठीक है ना, दो लेंसेज के डिस्टेंस को हम एल बोलते हैं। Therefore here L is equal to what? सिर्फ एक ऐसा केस है एट इंफिनिटी या नॉर्मल एडजस्टमेंट में जहां पे L का काम क्या होता है? L becomes equal to FO plus FE। कभी कभी आपकी प्रॉब्लम में क्या होता है? L गिवन होता है, FO गिवन होता है, तो आपको FE निकालना है, तो आपने उस टाइम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन के को इतना वो नहीं करते हैं, बट ये वाला आजकल आ रहा है कि दो चीजें, ये एल गिवन होगा या एफओ गिवन होगा, एफ निकालोगे, या एफ गिवन होगा, एल गिवन होगा तो एफओ निकालना होगा यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब फिर से अगेन हमें कहाँ पे जाना है? हमने निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा, ठीक है। ये आई पीस है तो ये हमेशा हमारा फाइनल इमेज का काम करता है, तो इसको ये बीटा से रिप्रेजेंट करिए, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अल्फा से रिप्रेजेंट करिए। अब आपने tan बीटा को, मैं इधर वो कलर कर देती हूँ, ये tan बीटा है, ये पोर्शन आपका tan अल्फा है, ओके। अब tan बीटा बताइए मुझे, व्हाट विल बी योर tan बीटा? tan बीटा बताइए, परपेंडिकुलर, ये एक राइट
A dash B A dash डैश upon C2 है ना। तो बताइए A dash C2. A डैश B डैश अपॉन B डैश C2। एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा है क्या क्लास में? बाकी भी बताओ, tan अल्फा किसके इक्वल होगा? tan अल्फा के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? A डैश B डैश C1, राइट। आप बताओ, कोई भी बता दो आप में से, मनीष के अलावा। क्या लिखूं अब मैं? A dash B dash A डैश B डैश। upon B dash C1. हाँ, वेरी गुड। आप भी बोला करो, सारे बोलो ऐसे, फिर लगता है एक ही स्टूडेंट सुन रहा है। ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C1, ठीक है। अब जब रिवीजन क्लासेस चलेगी तो बोलना है आपने, अब तब मैं कम बोलूंगी, आप ज्यादा बोलोगे। ए डैश बी डैश, ये हो गया बी डैश C2 और ये हो गया बी डैश C1। कर लीजिए इसका। m इज इक्वल टू टैन बीटा बाई टैन अल्फा। टैन m इज इक्वल टू टैन बीटा आपका है ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C2 इंटू इसका रिवर्स हो जाएगा बी डैश C1 अपॉन ए डैश बी डैश। ये और ये कैंसिल, तो रिमेनिंग आपका क्या रह गया? रिमेनिंग आपका रह गया, यहाँ मैं चलो यहाँ से रिलेज कर देती हूँ। आप ना स्क्रीनशॉट भी रखो अपने पास या लिख लिया करो मेरे साथ, तो फिर बाद में मैं PDF तो भेजूंगी, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, नहीं समझा हुआ आपने यहाँ से। बी डैश C1 अपॉन बी डैश C2 आया हमारे पास। ओके, अब हमें सारी मेजरमेंट्स कहाँ से देखनी है? C1 से। चलिए पहले C1 पे जाते हैं, ये रहा C1। C1 टू बी डैश, इज इट C1 से जाना है बी डैश पे, इज इट अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट और अलोंग द इंसिडेंट लाइट? Opposite to Along, incident line. अलोंग। C1 से, along, Yes ma'am. Yes है ma'am. ना, Yes ma'am. अलोंग तो पॉजिटिव। एक चीज तो हमको पता चल गई, पॉजिटिव है। अब देखिए C1 से बी डैश, व्हाट इज दिस? C1 से बी डैश क्या जा रहा है आपका? FO, है ना। C1 से बी डैश का डिस्टेंस क्या बता रहा है? क्योंकि FO है यहाँ, तो ऑप्टिकल सेंटर से FO तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई विल राइट प्लस F, ठीक है, अपॉन। अब देखिए बी डैश C2। अब कोई आप में से कोई गर्ल बताएगी, कोई भी आप में से कोई रिप्लाई करो। ये स्नेह श्री संस्कृति कोई आया हुआ है? हाँ, गर्ल्स में आप कोई बताओ मेरे को। अब है आपका बी डैश C2, आई थिंक C2 बी डैश। बताओ जी, संयुक्ता संस्कृति बताओ, या शिवानी आप बताओ, C2 बी डैश को प्लस होगा या माइनस होगा? हाँ, नेगेटिव। आवाज नहीं आ रही मुझे। स्पीकर तेरा तुम्हारा, नेगेटिव। आप बताओ। C2 बी डैश क्या होगा? पहले तो आप डायरेक्शन देखिए, C2 से बी डैश जा रही हूं मैं। वो हाँ, मैम वो उसके लिए यू होगा ना, इसके वो लिए पॉजिटिव यू लिया जाएगा सेकंड के लिए। हाँ, पहले मुझे C2 ये के लेंस है उसका। एक सेकंड, C2 से बी डैश अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट है या अलोंग द इंसिडेंट लाइट है? देखो मेरा एरो, C2 से बी डैश में इधर अपोजिट टू इंसिडेंट अपोजिट, लाइट, सो तो नेगेटिव। माइनस आएगा। ओके, एक तो हो गया। अब C2 से बी डैश इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैंने FE भी लिखा हुआ है ना। C2 से बी डैश का डिस्टेंस हमने FE से भी रिप्रेजेंट किया है, सो आई विल राइट इट हियर माइनस FE, ठीक है। यू ऑब्जेक्ट तो है यहाँ पे, यू ही है, बट यू बेसिकली क्या है यहाँ पे? यहाँ फोकल लेंथ को टच कर रहा है, तो हम उस यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? FE से रिप्लेस करेंगे। सो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ योर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बिकम्स, इट इज यू, बट इट एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है, बट यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ है, तो हमारा फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे है ये, तो हम उस यू को किससे रिप्लेस कर रहे हैं?
एफ ई से रिप्लेस कर रहे हैं। तो प्लस क्यों आया यहाँ पे, माइनस क्यों आया है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर इंसिडेंट लाइट। और एल या आपका एफ ओ प्लस एफ ई है, ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना है आगे के लिए, ठीक है। अब आपको इसी में चेंज करके मैं कोशिश करती हूँ, इट्स अनदर पार्ट जो एक्चुअली आपको इमेज दिखाएगा, दैट इज इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैं एक्सप्रेशन को इरेज कर रही हूं। क्योंकि इस वीक थोड़ा सा ना क्लासेस लेनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा, जिससे आपका काम खत्म हो जाए। ओके, यही सिचुएशन रहेगी। देखिए मुझे, मैं इसको नहीं इरेज किया बिकॉज आप सोचोगे एक नई डायग्राम बन गई, ऐसा नहीं है। उसके लिए हल्का सा हमको चेंज करना है, ज्यादा नहीं चेंज करना। मैं ये भी हटा रही हूँ, ये भी हटा रही हूँ, ये भी हटा रही हूँ। ओके, and image is formed at least distance, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा तो कोई बात नहीं। Final image is formed at least distance of distinct vision. Final image is formed at least distance of distinct vision. अब ये केस है, कैपिटल डी से हम उसको डिनोट करते हैं। सेम, द सिचुएशन रिमेन्स द सेम। द फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस व्हाट इज हैपनिंग, द पैरेलल रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, फार ऑफ डिस्टेंस। आफ्टर पासिंग दिस इंफिनिटी से जब भी आएगा आपका ऑब्जेक्ट, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द इमेज इज फॉर्म्ड एट योर व्हाट फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर एफ नॉट, राइट। नाउ अब केस क्या करना है, डिफरेंस क्या लेना है हमें, कि ये वाला अब थोड़ा ऑलमोस्ट यहां बना लेते तो ज्यादा बेटर था। आप कोशिश करिएगा फिर यहां बनाने की। मैं अब एफ ई को यहां पे ले रही, एफ ई को सिर्फ मैंने एफ ई को डिस्प्लेस किया, ओके। नो, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में मुझे एफ ई को डिस्प्लेस करना है। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट के लिए, तो जो सिचुएशन पहले थी वही है, बट आई लेंस के लिए व्हाट इज द सिचुएशन नाउ, द ऑब्जेक्ट इज between, the object is placed between what, object is placed between focus and optical center C2 of the eye lens. अब ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट आपका है फोकस किसके, आई लेंस के फोकस पे और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। मुझे अब बताइए, जब ऑब्जेक्ट आपका, ध्यान से आंख बंद करके सोचिए, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस किसी भी लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो कौन सी इमेज बनती है आपकी, वर्चुअल। वर्चुअल। हाँ, इमेज एज ए रूल आपकी वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट उसी जिस तरीके का ऑब्जेक्ट जैसे है वैसा बनेगा, और मैग्निफाइड बनेगा, ठीक है, एंड ऑन द सेम साइड बनेगा, ठीक है। तो अब हमारा ये ए डैश बी डैश इसका ऑब्जेक्ट का काम तो कर ही रहा है, ठीक है। और अब इसको मैं पीछे एक्सटेंड करती हूँ। अब हमें एक्सटेंड कैसे करना है, तो इसको पीछे एक्सटेंड करिए, इसको पीछे एक्सटेंड करिए। ये थोड़ा ना आपके स्केल से हो जाएगा प्रॉपरली। ये मेरा ये स्टाइलस से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ये आपने तब इमेज दिखा, दिस विल बी योर ए डबल डैश बी डबल डैश, and from this position to this position to eye length you will call it least distance of distinct image. Final image जो होगी, the final image, this is your final image, the final image will be your A double dash B double dash. तो आपको डिफरेंस पता चल गया। आपने क्या करना है, सारा सेम है, नॉर्मल एडजस्टमेंट जैसा है, बट अभी हमने फाइनल इमेज को जोड़ा नहीं, तो इंफिनिटी पे हमने शो किया। लेकिन जब आप एक्सटेंड करके
उन रेज को कहीं पे ज्वाइन करोगे तो वो आपका वर्क क्या करेगा, इट विल वर्क एज योर फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये दो केसेस आते हैं। जैसे क्या होता है कि जब सीबीएसई का पेपर होता है, किसी एक सीरीज में आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट दिया जाता है, किसी सीरीज में बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। तो आपने उस तरीके से इसको प्रैक्टिस में लेना है। तो यहाँ पे कहानी वो वाली खत्म ही हो गई, L इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, इट इज नॉट एप्लीकेबल हियर, क्योंकि एफ ई तब क्या था, एफ ओ भी एक ही उसी पॉइंट पे था, एफ ई भी उसी पॉइंट पे था। यहां से यहाँ एफ ई बन गया, यहां से यहाँ हमारा एफ ओ था, बट एफ ई अब हमारा थोड़ा इधर की ओर चला गया। तो ये चीज इस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज एप्लीकेबल है ओनली फॉर द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब हमें टैन बीटा, बीटा एज इट इज यही रहेगा, अल्फा एज इट इज यही रहेगा। अब हम टैन अल्फा एंड टैन बीटा निकाल लेंगे। m इज इक्वल टू टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। बस अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। टैन बीटा, अब पहले हम टैन बीटा लिख लेते हैं, क्योंकि अब वही चीज हमने आपने निकाली है। टैन बीटा विद रिस्पेक्ट टू इसका ले लेंगे हम, क्योंकि एक पैरामीटर को हमें कैंसिल करना पड़ता है, a डैश b डैश अपॉन ये आपका ये b डैश भी है, b डैश c2, b डैश c2। अब टैन अल्फा ले लीजिए, टैन अल्फा के लिए भी यही लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए आपका, a डैश b डैश अपॉन b डैश c1। ठीक है, अब आप करिए m इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन b डैश c2 इंटू, डिवाइड कर रही हूं मैं, b डैश c1 अपॉन a डैश b डैश। ओके, यहां से a डैश b डैश को कैंसिल कर लो और m आपका आ गया b डैश c1 अपॉन b डैश c2। ठीक है, अब मैं इसमें पुट करती हूँ जैसे शिवानी ने अभी बताया ना, क्योंकि अब हमें यहाँ पे u लेना पड़ेगा उसको। अभी इसको यहाँ पे लेती हूँ मैं, देखिए ये इसको कंटिन्यू कर रही हूँ मैं यहाँ से, आई एम कंटिन्यूइंग दिस। ये m इज इक्वल टू, ये b डैश है, ये c1 है, ये तो FO है, b डैश के पास ऑब्जेक्टिव लेंस c1 है तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो c1 से b डैश की ओर हम जा रहे हैं, तो FO बन गया। तो FO आपका यहां से यहां तक है, FO आपका c1 से b डैश तक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। c1 से b डैश इज अलोंग द इंसिडेंट लाइट, सो इट विल बी रिटन एज प्लस f0। अब b डैश c2 देखिए, c2 और b डैश, बट एफ ई हमारा यहाँ पे है, सो ए डैश बी डैश एक्ट्स एज योर व्हाट, अब बी डैश हमारा क्या है, बी डैश c2, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एंड दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन व्हाट, इट इज लाइंग बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। इसका फोकस एफ ई है और ऑप्टिकल सेंटर क्या है, c2 है। सो द ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। सो इस ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, C2 से B डैश की ओर जाना है। C2 से जब B डैश की ओर जाएंगे, फ्रॉम C2 टू B डैश, इट इज अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट, अब इंसिडेंट लाइट के अपोजिट है, तो हम लेंगे माइनस। और ये B डैश आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है आई लेंस के लिए, तो हम लिखेंगे माइनस U। सो मैग्नीफाइंग पावर बिकम्स प्लस f0 अपॉन माइनस UE। अब यहाँ हम FE इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि FE तो इसका यहां तक जा रहा है, तो पहले केस में FE भी यहाँ पे था, तो इसलिए हमने उसको FE लिया। बट हियर यू विल राइट, जैसे शिवानी ने बोला था, यू विल राइट हियर ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ऑफ योर व्हाट, दिस आई लेंस। ठीक है, बट इसको फिर हमको फिर से थोड़ा सा क्या करना, मैथमेटिकली एक्सटेंड करना। इसको मैं यहाँ पे इरेज करके मैं आपको मैथमेटिकली इसको कैसे आपने लेना है आगे, देखिए ये आपका क्या है, अब आपको पता है
लेंस का फॉर्मूला क्या है? द लेंस का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम लिखेंगे 1/fe, हम आई लेंस की बात कर रहे हैं, हमने ये निकालना। देखो मैं इसको एफ नॉट इंटू 1/-u ऐसे कर दिया मैंने, हमने ये टर्म निकालनी, ठीक है। तो आपको पता है आई लेंस का निकालना है, हमें आई लेंस का ये निकालना है पोर्शन। तो 1/fe इज रिटन एज 1/ve, ई मतलब आई लेंस, माइनस 1/u। तो हमारे पास आ गया -1/u, ये हमें चाहिए। तो -1/u को इसी साइड रखेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, विच इम्प्लाइज -1/u इज इक्वल टू 1/fe माइनस 1/v, राइट। और इसको हम थोड़ा ये सॉल्व कर लो, -1/u इज इक्वल टू fe ve, राइट। और यहां से ve माइनस fe। अब ये चीज आप इसमें सब्सटीट्यूट करें, राइट। सो इट विल बिकम -1 अपॉन, अब इसको सब्सटीट्यूट कर रही हूं मैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ नॉट तो लिखना ही है, इंटू -1/u की जगह हमको ये लिखना है। सो वी विल राइट ve माइनस fe अपॉन fe ve, ठीक है। fe ve को बाहर निकाल लीजिए, m इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन fe ve को मैंने बाहर निकाला, और ये ve माइनस fe, ठीक है। अब यहाँ पे ve को भी बाहर निकालिए, ve को कॉमन निकालिए, m इज इक्वल टू एफ नॉट, ठीक है, ve अपॉन fe ve। ve को हमने बाहर निकाला तो 1 माइनस fe ve, ओके। ve और ve आपका कैंसिल हो गया, so it will be written as your what, fo upon fe, 1 minus fe ve, okay। ve is your image distance, ये रहा d, इमेज का डिस्टेंस। IP से यहां तक का डिस्टेंस देखिए, ये इमेज डिस्टेंस VE है, VE एक्चुअली है ये, बट V is your what, least distance of distinct vision and is opposite to your its incident light। इसकी इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, VE is equal to -d। So the final expression becomes your m equals to FO upon FE, 1 minus FE अपॉन ये -d होगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो FE d, ओके। एंड दिस इज योर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन केस ऑफ योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये टेलीस्कोप आपका एस्ट्रोनॉमिकल पोर्शन सारा खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, उसमें ये सब इतने सारे वो डेरिवेशन नहीं है, उसमें सिंपली आपको खाली एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। तो आई थिंक काफी हो गया। तो हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को का खाली रे डायग्राम है, वो इतना डिटेल में नहीं है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। और उसी टाइम में आपको रिफ्रैक्शन थ्रू वो बता दूंगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंड देन विल गो टू, फिर हमारा उसी के साथ लेंस मेकर फॉर्मूला स्टार्ट होगा। तो दैट मीन्स 2 लेक्चर्स इसमें रिक्वायर्ड है कंप्लीट करने के लिए, तो अगर कभी एक्स्ट्रा भी लेना पड़े